اگر میں کسی ایک شخصیت کا نام لوں جسے دیکھ کر نظر ٹھہر جاتی ہو اور بے پناہ پیار بھراتا ہو، وہ نام صرف اور صرف گلوکارہ نازیہ حسن کا ہے۔ اگر ملکہ حسن کی دیوی اور پری سے بھی بڑھ کر کوئی لفظ ہوتا تو نازیہ ہی اس کی حقدار ٹھہرتی۔ دل فریب چہرہ، پرکشش شخصیت، سریلی آواز اور بھرپور نسوانی ادائیں، پاپ میوزک کی ملکہ نازیہ حسن کو نہ زمانہ فراموش کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا۔ 10 سال کی عمر میں کیریئر کا آغاز کرنے والی نازیہ حسن نے اپنی مختصر زندگی میں بے مثال شہرت اور محبت حاصل کی۔ ان کا شمار پاکستان کے ان ستاروں میں ہوتا ہے جن کی شہرت پاکستان اور ہندوستان تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنے ملک کی پہچان بن گئیں۔ ایشیا کے اندر جدید موسیقی کے پائنیئرز میں نازیہ کا نام سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ نازیہ کی بے مثال مقبولیت میں ان کی مدھر آواز اور گلوکاری کے منفرد انداز کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا بھی بڑا کردار ہے۔ نسوانیت سے بھرپور، باوقار اور سلجھی ہوئی نازیہ طبعی طور پر بہت شرمیلی اور حساس لڑکی تھی۔ آنکھوں میں ادائیں، گلے میں سر اور دل میں درد سمیٹے اس بے مثال گلوکارہ نے جلدی بہت سی شہرت اور مقبولیت سمیٹی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ ہماری دلدادہ گلوکارہ نازیہ حسن کو جوانی میں ہی ایک اذیت ناک مرض نے آ گھیرا، جس نے پہلے ان کی ازدواجی زندگی تباہ کی اور پھر سونے جیسی حسن والی نازیہ کو مٹی کا ڈھیر کر دیا۔ اور جس طرح پوری دنیا میں اپنا نام بنانے والی نازیہ حسن کی لاش لندن میں لاوارث پڑی رہی، وہ بھی کسی عبرت سے کم نہیں تھی۔ نازیہ 1965 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد بصیر حسن کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ایک خوشحال بزنس مین تھے۔ یہ ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن فیملی تھی۔ نازیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت زیادہ تر لندن میں ہی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ نازیہ کے گھر میں ان کے ماں باپ کے علاوہ بھائی زہیب حسن اور بہن زارا حسن بھی تھے۔ زہیب حسن بھی بچپن سے ہی گلوکاری کا شوق رکھتے تھے۔ آگے چل کر بھائی بہن کی اس جوڑی نے باقاعدہ پروفیشنل کیریئر میں بہت سے گانے مل کر گائے اور بے مثال پذیرائی حاصل کی۔ یوں تو نازیہ حسن نے 10 سال کی عمر میں بہت اچھا گانا شروع کر دیا تھا، لیکن انہیں اصل شہرت 1980 میں ریلیز ہونے والی انڈین فلم قربانی کے لیے گائے ہوئے گیت سے ملی۔ معروف ڈائریکٹر فیروز خان نے لندن میں نازیہ کو سنا تو فوراً ان کا گانا اپنی فلم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں آپ جیسا کوئی منظر عام پر آیا اور آتے ہی چھا گیا۔ نازیہ راتوں رات ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر محض 15 برس تھی۔ نازیہ ایک بہت ہی بھولی بھالی اور معصوم لڑکی تھی جنہیں رنگا رنگ دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ انہیں گلوکاری کا شوق ضرور تھا اور انہیں ایک بے مثل آواز بھی تحفے میں ملی تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی اس ہنگامہ خیز دنیا کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی جھلک ان کے کم عمری میں دیے گئے انٹرویوز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ نازیہ حسن کی یاد بھی تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، بات بن جائے۔ گیت آپ جیسا کوئی کے لیے نازیہ کو پلے بیک سنگنگ کا فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ فلم فیئر ایوارڈ بالی ووڈ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ نازیہ پہلی پاکستانی تھی جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی اب تک کی سب سے کم عمر شخصیت ہے۔ آپ جیسا کوئی اس قدر مقبول ہوا کہ ہر طرف بس اسی گیت کا چرچا تھا۔ بارڈر کے دونوں اطراف اخبارات اور ٹی وی چینلز نازیہ کے انٹرویوز کے لیے بے قرار رہنے لگے، لیکن نازیہ اس وقت اسکول میں تھی اور ان کے والدین کی پہلی ترجیح ان کی تعلیم تھی۔ ابھی تو نہیں سیکھا اور ابھی اسکول ہے نا تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، جب شاید اسکول کے بعد یا کالج کے بعد دیکھوں گی، لیکن ابھی تو نہیں کر رہی۔ آپ جیسا کوئی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے بعد نازیہ نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ مل کر اپنا پہلا باقاعدہ البم ڈسکو دیوانے ریلیز کیا۔ اس البم نے پوری دنیا میں جدید موسیقی کے شوقین افراد کو دیوانہ بنا دیا۔ پاکستان اور انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں میں یہ البم مقبولیت کے لحاظ سے نمبر 1 رہا۔ نازیہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بن گئی۔ وہ پاکستان اور ہندوستان میں جہاں جاتی ہزاروں افراد کا مجمع ان کے استقبال کے لیے منتظر ہوتا۔ وہ اس وقت برطانیہ میں زیر تعلیم تھی، وہاں بھی وہ ایک جانی پہچانی شخصیت بن گئی۔ اس البم کا ٹائٹل سانگ ڈسکو دیوانے آج تک ایک انتہائی مقبول گیت ہے جسے کئی بار ریمیک بھی کیا جا چکا ہے۔
नाजिया और ज़ुहैब पहले जनूबी एशियाई गुलकार थे जिन्हें म्यूजिक की मारूफ इंटरनेशनल कंपनी EMI ने साइन किया। नाजिया और ज़ुहैब की कामयाबियों का यह सिलसिला थमा नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता चला गया। हालांकि उस वक्त दोनों बहन भाई जेरे तालीम थे। ज़ुहैब ने MBA किया जबकि नाजिया ने रिचमंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी हासिल की। तालीम मुकम्मल करके अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हो गयी और कई साल वहाँ मुलाजिमत करती रहीं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसी अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ ने नाजिया को अपना कल्चरल एम्बेसडर मुकर्रर किया। यूनिसेफ बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। शानदार मकबूलियत और पुरकशिश शख्सियत की बदौलत नाजिया को फिल्मों में अदाकारी करने की ऑफर भी हुई, लेकिन नाजिया ने कोई ऑफर कबूल नहीं की। ऐसी ही एक पेशकश 1982 की फिल्म स्टार के लिए भी हुई, लेकिन नाजिया ने इनकार कर दिया। लेकिन इस फिल्म के लिए साउंड ट्रैक उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। ये साउंड ट्रैक एल्बम 1984 में रिलीज हुआ और बॉर्डर के दोनों तरफ छा गया। नाजिया और ज़ुहैब का तीसरा एल्बम यंग तरंग 1984 में रिलीज हुआ। इस एल्बम के गीत नाजिया और ज़ुहैब ने खुद लिखे थे। म्यूजिक ज़ुहैब और भारतीय कंपोजर बीडो ने तरतीब दिया था, जबकि डायरेक्शन के फराइज अमित खन्ना और जॉन किंग ने सरअंजाम दिए। डेविस रोज और केथी रोज भी इस एल्बम की तैयारी में शामिल थे। 10 गीतों पर मुश्तमिल इस एल्बम के कई गीत बहुत मकबूल हुए, जिनमें सरफहरिस्त आंखें मिलाने वाले था। यंग तरंग की शानदार कामयाबी के 3 साल बाद 1987 में नाजिया और ज़ुहैब ने चौथा एल्बम हॉट लाइन रिलीज किया। ये एल्बम डिस्को दीवाने के बाद नाजिया और ज़ुहैब का सबसे कामयाब एल्बम साबित हुआ। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बरतानिया में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देने वाले इस एल्बम में 13 गीत शामिल किए गए। इनमें से ज्यादातर गीत मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी आहा को हासिल हुई। उन्नीस 1988 में जनरल ज़ियाउल हक एक हादसे में जाँ बहक हो गए, जिसके बाद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई तो मुल्क में तब्दीलियां आना शुरू हुईं। ज़ियाउल हक दौर की पॉलिसी तब्दील करते हुए आज़ाद ख्याल और लिबरल रवैये को फरोग दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान टेलीविजन का रंग ढंग भी बदलना शुरू हुआ। PTV ने कई जदीद नौयत के प्रोग्राम नशर करना शुरू किए। अहमद रुश्ती, रूना लैला, आलमगीर, वाइटल साइंस, जुनून और खुद नाजिया और ज़ुहैब। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का शजर तो पहले ही तनावर हो चुका था, लेकिन अब इसे सरकारी सरपरस्ती भी हासिल हो गई। ऐसे में PTV ने म्यूजिक 89 के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। ये अपनी तर्ज का एक मुनफरिद शो था। पाकिस्तान में इससे पहले पॉप म्यूजिक का कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं हुआ था। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शोएब मंसूर थे। शोएब मंसूर का नाम ही मयार की जमानत समझा जाता है। नाजरीन बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतजार करने लगे। जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो तवक्कुआत पर पूरा उतरा। यूं तो कई बेहतरीन सितारे इस प्रोग्राम की जीनत बने थे, लेकिन नाजिया और ज़ुहैब की जोड़ी नेशनल टेलीविजन की स्क्रीन पर छा गई। म्यूजिक 89 जहां इंतहाई मकबूल हुआ, वहां इस प्रोग्राम से बहुत से तनाज़ात भी पैदा हुए। ये एक मॉडर्न प्रोग्राम था जिसमें मगरिबी तर्ज का लिबास पहने नौजवान गुलकार पॉप गीत गाते नजर आते थे। हाजिरीन की महफिल मखलूत थी। कई नौजवान धुनों पर थरकते भी रहते और हाथ हिलाते। इस सब पर बहुत शदीद एतराज हुआ। मजहबी तबके ने तो प्रोग्राम के खिलाफ जुलूस भी निकाले। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में भी इस प्रोग्राम के खिलाफ तकरीरें की। करने वालों को इस बात पर भी एतराज था कि नाजिया और ज़ुहैब बहन भाई होते हुए रोमानवी गीत क्यों गाते हैं। इस एतराज को ज़ुहैब हसन की एक बात ने तक़वियत दी जो उन्होंने मोइन अख्तर को इंटरव्यू में देते हुए कही थी। उन्होंने कहा कि अगर नाजिया उनकी बहन न होती तो वो उनसे शादी कर लेते। इस बयान को बिल्कुल मुख्तलिफ रंग में पेश करके मौलवी हजरात और दीगर शिद्दत पसंद हलकों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन नाजिया की मकबूलियत में कोई कमी न आई, बल्कि दिन ब दिन ये मकबूलियत बढ़ती चली गई। नाजिया को अदाकारी का कभी शौक नहीं रहा। हालांकि उन्हें कम उम्री से ही अदाकारी की ऑफर्स होने लगी थी, लेकिन न जाने क्यों वो अदाकारी से बेजार थी और इसका इजहार उन्होंने कई इंटरव्यूज में किया, जैसा कि मोइन अख्तर के शो में भी उन्होंने सवाल का दिलचस्प जवाब दिया था। वो फिल्मों में काम करने की भी ऑफर्स हुई थी? जी ऑफर्स तो थी। फिर आपने क्यों इनकार कर दिया? जी मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से। नाजिया दूसरे गुलकारों के साथ मुख्तलिफ टीवी शोज में नजर आती, जिसमें नदीम के साथ उनका एक गीत बहुत मकबूल हुआ और आज भी सुनहरी यादों का हिस्सा है। नदीम और नाजिया ने मिलकर गीत कभी तुमको याद आएंगे गाया, जो सुनने वालों का दिल मोह लेता है।
नाजिया और ज़ुहैब का 5वां एल्बम कैमरा कैमरा था। ये एल्बम मंशियात के खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा था। इसके कई गीत बेहतरीन थे, लेकिन इस एल्बम को पहले 4 एल्बम जैसी शानदार मकबूलियत हासिल नहीं हुई। अलबत्ता ये एल्बम नाकाम भी नहीं हुआ। 1992 में रिलीज होने वाले इस एल्बम के गीत अपने वक्त से बहुत आगे के थे। एल्बम कैमरा कैमरा का सबसे मकबूल और यादगार गीत ताली दे थल्ले था। ये नाजिया के गुज़श्ता गीतों के मुकाबिल एक मुनफरिद नौयत का गीत था, जिसमें वो मशरकी अंदाज में नजर आई और बेहद खूबसूरत नजर आई। ये मधुर गीत बहुत पसंद किया गया और कई सालों तक टीवी पर बाकायदा चलता रहा। एल्बम कैमरा कैमरा के बाद नाजिया को फेफड़ों के कैंसर ने आ लिया। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल से भी कम थी। नाजिया ने बहुत बहादुरी से इस मरज का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दी। कैंसर से एक कामयाब जंग के बाद नाजिया का हौसला तो बुलंद हुआ, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पास वक्त इंतहाई कम है। वो लंबी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगी, इसलिए उन्होंने जिंदगी के बाकी तजुर्बात से गुजरने का फैसला किया। 1995 में उनकी शादी कराची के मारूफ कारोबारी शख्सियत इश्तियाक बेग से हुई। इश्तियाक बेग के साथ नाजिया ने शाहाना जिंदगी गुजारी। नाजिया और इश्तियाक दोनों ही घूमने फिरने के शौकीन थे। उन्होंने चंद सालों में 60 मुल्कों की सैर की। इस दौरान वो बीमार बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम मेक अ विश को पाकिस्तान लेकर आए। 1997 में अल्लाह ने नाजिया को औलाद की नेमत से भी नवाजा, जो किसी मौजज़े से कम न था। कैंसर से मुतासिरा खवातीन के लिए औलाद को जन्म देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, लेकिन नाजिया के यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम आरीज हसन है। लेकिन अफसोस नाजिया का अपने बेटे को बड़ा होता देखना नसीब न हुआ। 1999 में उनका कैंसर लौट आया। अब की बार भी उन्होंने इस बीमारी का बहुत बहादुरी से सामना किया। वो कीमोथेरेपी के तकलीफ दे मराहिल से गुजरी और बैरून मुल्क ज़ेरे इलाज रही। इस सारे दौरानिये में वो डिप्रेशन और मुख्तलिफ खानदानी मसाइल का भी सामना करती रही। इश्तियाक बेग से उनकी खुशगवार नजर आने वाली बज़ाहिर जिंदगी तलाक पर खत्म हुई। यानी लाखों दिलों की मलिका पर ये वक्त भी देखा गया कि उन्हें उनका हमसफर छोड़ कर चला गया। कहाँ हजारों लोग उनके लिए तरसा करते थे, और अब नाजिया की आंखों ने ये वक्त भी देखा कि उन्हें हर कोई छोड़ गया। समझने वाले समझे तो ये बहुत गैर मामूली बात थी। इस तलाक के सिर्फ 10 दिन बाद 13 अगस्त 2000 के दिन नाजिया इस दुनिया से कूच कर गयी। कहा जाता है कि ये अजीम फनकारा, पॉप की ये मलिका, करोड़ों दिलों की ये धड़कन अपने आखिरी वक्त में लंदन के अंदर मौजूद लावारिसों के एक मरकज में थी। उन्हें लंदन में ही दफन किया गया। एक बेमिसाल हुस्न और एक बेनजीर आवाज सिर्फ 35 साल की उम्र में मनो मट्टी तले चली गई, लेकिन बेशुमार मद्दाहों के दिलों में वो प्यारा सा मासूम चेहरा, वो सुरीली मधुर आवाज कभी नहीं मर सकेगी।